Hello friends, myself Manjeet Singh. Today we are going to discuss about the first chapter of 11th class, Introduction to Microeconomics, and the topic of this chapter we will discuss is economic problem. Okay, the question is what is economic problem? Economic problem के लिए हम कहते हैं wants of human beings are unlimited. Human wants are unlimited, like they are like stars. As there is no limit to stars, there is no limit to wants. As one want satisfied, other want arises. Like when you have mobile, you want to buy a car. जब आपके पास कार है तो you want to buy a good house, then you want to buy luxurious cars, then you want to buy imported cars or maybe imported furnitures, diamond sets. So wants of human beings are unlimited. When one want is satisfied, other want arises. And the second thing is means or resources to satisfy these wants are limited. इनको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए लिमिटेड है. लाइक यू से लैंड और मिल्क यू से हम बोलते हैं हमारे पास लिमिटेड है. They are not only limited but also they are having alternative uses. Like milk can be used for tea, coffee, cheese, etc. Land can be used for wheat, pulses, rice, etc. So we have to make the choice. And the problem of choice making is called economic problem. दो बातें होगी, wants अनलिमिटेड है और दूसरा मीन्स लिमिटेड है. और दूसरी बात इसमें ह्यूमन वांट्स जो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं. इन सब वजह से हमें चॉइस करना पड़ता है कि कौन सी वांट को सेटिस्फाई करें, कौन सी वांट को लेफ्ट आउट कर दें. ठीक है, तो विच वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड एंड विच वांट्स आर टू बी लेफ्ट आउट, because all wants cannot be satisfied because we have limited resources. जब हमारे पास resources ही कम है तो सारी wants तो satisfy हो नहीं सकती. Then second thing is what is the root cause of economic problem? Root cause एक ही है, scarcity of resources. Scarcity of resources in relation to want is basic reason of economic problem. हमारा जो basic reason है economic problem का वो scarcity means deficiency means demand is greater than supply of resources. Like money is always a limiting factor. Resource है money और money हमारे पास हमेशा limited होता है. We say money is always a limiting factor. So all wants cannot be satisfied because of limited money, limited resources, and the scarcity is the key word. इसीलिए बोलते हैं इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का कीवर्ड और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कीवर्ड स्कार्सिटी है. और वहां से हमारा इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ. इकोनॉमिक्स का अराइज ही इसीलिए हुआ, इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस ही इसीलिए हुआ क्योंकि वी हैव स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. सो वी मेक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं. हम ये बोलते हैं अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम किस वांट को पहले सेटिस्फाई करें, रिसोर्सेज को कहाँ पुट करें, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज हैं, which want should be satisfied, to which use should the resources be put. Resources have alternative uses. For example, tomato can be used for salad, sandwich, vegetable and juices. And we want to satisfy which one. You want to put resources in which use? That depends on you. You say हम urgent है, हम sandwich के लिए use करेंगे, तो you can satisfy with your want with sandwiches. ठीक है, you can use tomato in sandwiches. आप टोमेटो को यूज सैंडविच में कर ले. आपको लग रहा है कि सैलेड में बहुत जरूरी है तो सैलेड में यूज करें. ठीक है, तो रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. सो वी मेक choice and choice problem is called economic problem. Basic economic problem इसीलिए हमने बोला human wants are unlimited लेकिन resources की scarcity है. resources में land, labor, capital ले सकते हो. scarcity implies insufficient availability of resources to meet the needs. scarcity leads to problem of choice. scarcity leads to what? problem of choice. अब हमने बताना है कि किन वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई. व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज. तो आपको पहले बता दिया कि चॉइस करनी है. तो चॉइस के लिए हम पहले बोलते हैं हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं
wants of human beings are unlimited. They multiply over time. When one want is satisfied, other want arises. When you have mobile, then you want car. When you have car, you want a big house. So wants multiply over time, and wants are recurring in nature. Some wants arise again and again. They are like you take breakfast in the morning, lunch in the afternoon, then dinner at night, again breakfast, lunch and dinner, and it's a recurring arise again and again. Wants differ in their urgency. Some wants are less urgent, some wants are more urgent. Necessities are required for survival, luxuries are required for comforts. So necessities जो है वो पहले लेंगे, लग्जरी जो है वो बाद में ली जाएंगी. और दूसरी बात, लिमिटेड रिसोर्सेज, जिन्होंने प्रोडक्शन करनी है वो हमारे पास रिसोर्सेज हैं. लेबर ने प्रोडक्शन करनी है, लैंड करनी है, वो हमारे रिसोर्सेज हैं. बट उनके हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है. लेबर हमारे पास पॉपुलेशन की साइज से लिमिटेड है. लैंड बाय एरिया ऑफ कंट्री लिमिटेड है. कैपिटल और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास लिमिटेड है. ठीक है. स्कार्सिटी ऑफ वेरियस इनपुट्स तो है ही है. शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स है तो अनलिमिटेड वांट्स. लिमिटेड मींस एंड अल्टरनेटिव यूजेस हम डिस्कस कर चुके हैं. टोमेटो है जैसे, उसके अल्टरनेटिव यूजेज है. इन सब की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है. और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं. और उसके रीजंस हमारे पास तीन हो गए: अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड मींस, एंड मींस आर हैविंग अल्टरनेटिव uses. So this is all about economic problem. And now further we will discuss about the problems of an economy. One is economic problem and second thing is central economic problems or common problems. दोनों के लिए रीजन एक ही रहेगा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है means problem of choice making. Even rich countries face economic problem or central problems. Like central problems are the common problems and we say it is a compulsion of making choices among various alternatives. उसके economic problem के अंदर आपको एक ही choice करनी है और इसके अंदर आपको various alternative की choice करनी है. जैसे कि हम ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. हम बोलते हैं दिल्ली गवर्नमेंट का बजट 5000 करोड़ रुपीज है, इधर वाईफाई और मोनोरेल. दिल्ली गवर्नमेंट ने चूज कर लिया कि वो वाईफाई करेंगे दिल्ली को, वो इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. अब दूसरी बात ये है कि अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करें, 1 part on वाईफाई, 1 part on मोनोरेल, 100% not on वाईफाई, 100% not on मोनोरेल. आउट ऑफ 100% हाउ मच ऑन वाईफाई एंड हाउ मच ऑन मोनोरेल. अगर आप इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले लेंगे, कुछ पार्ट वाईफाई पे, कुछ पार्ट मोनोरेल पे, तो फिर वो बन जाएगी क्या, हियर कंपल्शन इज टू सिलेक्ट बोथ, जस्ट डिसाइड द रेशियो ऑफ फंड्स. तो उसको कहते हैं हम क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम्स. ठीक है. इंडियन गवर्नमेंट का बजट है, फर्दर ले लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का बजट है 30,000 करोड़ रुपीस है. इधर एजुकेशन और डिफेंस ऑफ द कंट्री. चूजेस एजुकेशन इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. 1 part on education, 1 part on the defense of the country. That is again 100% not on education, 100% not on the defense. 1 part on education, 1 part of the defense. अगर 1 part पे करें तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम है. अगर 1 part ऑन एजुकेशन करें, 1 part ऑन डिफरेंट, तो वो वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं, वेरियस कॉम्बिनेशंस है. हियर कंपल्शन इज टू सिलेक्ट बोथ, जस्ट डिसाइड द रेशियो. Central problems, the way society chooses to use its limited resources to produce goods and services has 3 aspects explained by Samuelson in central problem. Reason of central problem हमारे पास एक ही है, वो है scarcity of resources. फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ए सैमुअलसन है, जिसने हमें सेंट्रल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट दिया. ठीक है. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के अंदर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस and how much to produce, how to produce, and third is for whom to produce. The 3 key questions, what, how and for whom आ गया. क्या आ गया? what, how and for whom. 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास. क्या बनाएंगे, कितना बनाएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो स्कार्सिटी है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हम डिस्कस कर चुके. इस वजह से हमें चॉइस करनी पड़ेगी. चॉइस के लिए हमें 3 प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस.
स्कार्सिटी हमें चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम में आती है, और चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसके साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रेड ऑफ्स आते हैं। ट्रेड ऑफ होता है हैविंग वन मोर ऑफ वन थिंग मीनिंग लेस ऑफ द अनदर थिंग। हमारे पास स्कार्सिटी है, अगर एक गुड को ज्यादा बनाएंगे तो दूसरे को कम बनाएंगे। ओके, बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमारे पास 3 ही है। CPE सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के वजह से होती है। सोसाइटी मेक चॉइसेस व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज, तो क्या बनाना है और कितना बनाना है वो पहली प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सोसाइटी मेक चॉइसेस बाय व्हाट मेथड, कैसे बनाना है वो हाउ टू प्रोड्यूस है। ठीक है, द वे सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो हमारी प्रॉब्लम कौन सी है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, what to produce and how much to produce, what goods and services are to be produced। फाइनेंस मिनिस्टर जी हमारे, उनका जो बजट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ गुड्स बनानी है, तो उनको चॉइस करनी है डिफेंस गुड बनानी है या सिविल गुड्स बनानी है। डिफेंस गुड्स में गन्स ले लेते हैं, सिविल गुड्स में बटर ले लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनाना है, अल्टरनेटिव्स बनाना है, यही हम बोलते हैं वो सेंट्रल प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ गन्स बनानी हो तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इन व्हाट क्वांटिटी, वो डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज और मनी कितनी है। हम कहते हैं आपके पास 500 करोड़ रुपए हैं, तो आप कहते हैं 500 गन्स बनानी है, 500 टन ऑफ ब्रेड बनाना है, चॉइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना है, तो वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, इसके अंदर हमें चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी करना है। तो पहली टेक्नोलॉजी होता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम कहते हैं मोर ऑफ लेबर लेस ऑफ कैपिटल। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। इस टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कॉस्ट आपकी मोर आएगी, मोर ऑफ कॉस्ट और लेस ऑफ क्वालिटी। फिर आ गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है मोर ऑफ कैपिटल लेस ऑफ लेबर। यहाँ मशीनरी ज्यादा लेबर कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा कॉस्ट कम क्वालिटी हाई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस लेस कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें आइडल रेशियो रहे, जिसमें हम बताते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन और मिनिमम कॉस्ट हो। क्या हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन और मिनिमम। तो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद कि कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी है, वो डिपेंड करता है आपकी कंट्री में क्या ज्यादा है, लेबर ज्यादा है या कैपिटल ज्यादा है, और कॉस्ट आपको किस में कम पड़ रही है वो लेना है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आपको बता दिया मोर ऑफ लेबर लेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बता दिया मोर ऑफ कैपिटल लेस ऑफ लेबर। फॉर whom टू प्रोड्यूस, लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि कितना जो प्रोडक्शन आपने कर लिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है। रेंट देंगे लैंडलॉर्ड को, लेबरर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। किससे रिलेटेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया। ठीक है, डिफेंस गुड्स, सिविल गुड्स वो आपने कर लिया, पर वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए किसने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने बनाया, तो उसका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को हम प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो उनका क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन किया है। तो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड जिन्होंने फंक्शन किया, 4 फैक्टर्स ने फंक्शन किया, तो वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, फॉर whom टू प्रोड्यूस में हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, हम चाहते हैं गैप बिटवीन रिच एंड पुअर डिक्रीज हो जाए। ठीक है, इफ इनइक्वालिटी इज रिमूव्ड दैट इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो अब पहले हम बता चुके हैं हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन अमंग इनकम अर्नर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन में या तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, और फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें 2 टॉपिक्स मेन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, जो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। टिल देन ओके, गुड बाय, गुड लक।